So in this video, I will try to explain all the chapters, name of all the chapters, what are very important for us for upcoming Prelim, WBCS Prelim, as well as for the foundation of main, grammar, vocab and everything else, even the practice session also, the practice paper also. Students who want to intend or enroll, enroll themselves in this online course, they may follow this video, in detail without dragging this one, for getting a clear-cut idea in which way just we are going to have these classes, okay? And who are our regular viewers, though you may not include or enroll yourself in this course, still this video is going to be very fruitful for you all. और हम लोग का ये जो चैनल है इसमें बहुत सारे बंगाली स्टूडेंट्स भी हैं, तो बंगाली स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी मैंने ऐसे ही एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, उसका लिंक इस वीडियो में भी रहेगा, बांग्ला चैनल जो है उसमें भी रहेगा, बट ये जो वीडियो अभी जा रहा है आप लोग जो देख रहे हो, ये वीडियो एंटायरली हिंदी और इंग्लिश में होगा. So without any further delay, just I am going to start. And first of all, one thing to say that if you want to score well, if you want to guarantee your hall ticket for WBCS men, you have to score at least 19 to 20 out of 25, particularly in this segment like English. And you know, it's a very manageable one. You can do it if you can intend. जस्ट इसके लिए आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, आपके पास एक क्लियर कट नॉलेज रहना चाहिए रिगार्डिंग द सिलेबस, एंड आपका चॉइस मतलब बुक्स का चॉइस, नोट्स का चॉइस भी एकदम अप टू द मार्क होना चाहिए, एंड डेफिनेटली एक गाइड का रोल तो होता ही है. सो लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली what I just want to show you that behind this battle, behind your preparation for that particular battle, you have to follow a very that is foolproof planning, जिसके लिए आपका ये मार्क्स आएगा. तो इसमें आपको सिर्फ वोकैब बेस्ड प्रैक्टिस करने से नहीं होगा. You know that since 2016 WBCS, Public Service Commission, has already included few of the chapters like tense, that is the subject verb agreement, transformation of sentences, the special role of adverbs and adjectives in their question paper or in the syllabus. So whenever you are going to start in this kind of thing, first of all we have to cover few chapters from this functional grammar. So first of all we will start with this one, like tense. It's a very important one. So in this class, in those classes which are assigned for tense, over there हम लोग क्या करेंगे, पहले टेंस का जो फॉर्मेट जो होता है, बेसिक फॉर्मेट जो होता है वो पहले डिस्कस करेंगे. वहाँ पर we will discuss all the that is the system and the format of all the tense and their special usage. टेंस के ऊपर जो स्पेशल यूसेज है, एरर करेक्शन बेसिस और द फिलर्स, बेस्ड ऑन फिलर्स एंड एरर करेक्शन, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे. देन वी विल कवर द चैप्टर लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, and among the part of speech we are just going to cover noun, pronoun, adjective and adverb, and over there no definition or the classification. You are not going to waste our time on definition and the classification or taking 2 or 3 examples of noun, pronoun, adjective, adverb. Rather, you are going to deal with the application part of all those things. Like if you face the question from, the case of pronoun, we have to know that if you have been given with the preposition like such, and if they give you that such के बाद आपको एक WH word दिया हुआ है, like such के बाद who या such के बाद which, तो which और what, who जो भी हो उसको रिप्लेस करना है as, ये the word से, ये सब चीज़ सीखेंगे. In case of adjective, we are going to deal with distributive adjective specially, and few more exception like where we can use no fewer than, where we can use no less than, what's the difference between many a and many an, okay?
So this kind of thing, only the application part. In case of noun, we are going to deal with different kind of vocab, like what's the difference between summon summon and summons summons, what's the difference between brothers and brethren, what's the difference between wage and the wages, this kind of thing, application part. What would be the pattern of the verb with a collective noun, what would be the pattern of the verb with a proper noun and the common noun, if we place any article before a common noun, what would be the nature of the verb, this kind of things should be covered. So noun, pronoun, adjective, adverb, no mere discussion of definition and examples and classification, rather in detail the application part. Next, you know that your integral part of your preparation should be preposition, and whenever you are going to be the aspirant of WBCS Prelim, you know, from this chapter you have to make ready like fixed preposition, group verb and prepositional phrases. These three things are needed for WBCS Prelim. What are those? Once again, just I am going to say, like fixed preposition, the appropriate preposition. Then we have to work on prepositional phrases like in lieu of, in exchange of, in accordance to, in spite of. What's the difference between in spite of and despite? Can we add preposition of after despite? This kind of things. Okay, so prepositional phrases. And one more thing, that is the group verb. So this is all about preposition. Next, come to two easiest chapters like voice change and narration change, and you know that a very easy level of questions will be there. And one more chapter, that is transformation of sentences. We know it as code switching, matlab transformation of sentences. Okay, so these are going to be the chapters for functional grammar, and students intending for WBCS Prelim, targeting for WBCS Prelim should cover this kind of things. These chapters. In our online course also, we are going to cover these chapters, especially for WBCS Prelim 2023 and 2024. Next, come to this part, the most important one, that is the vocabulary. In case of vocabulary, you know, few traditional things are there, like one word substitution, idioms, foreign idioms, group verb, these four, and synonym and antonym. And in case of synonym, antonym, don't just cram few words. Only cramming or memorizing few words will not do. Okay, आपने एसपी बख्शी का एक बुक उठा लिए और मार्केट से लुसेंट का बुक उठा लिया, या कोई भी एक बुक ले लिए, उससे आप जस्ट कुछ चीज़ मेमोराइज कर रहे हो, कुछ वोकैब मेमोराइज कर रहे हो सिनोनिम और एंटोनिम का, विल नॉट डू. आपको सेंटेंस वाइज उसका यूसेज क्या होता है, सेंटेंस वाइज. ओके, फॉलोइंग द ट्रेंड ऑफ WBCS Prelim आपको थोड़ा कैटेगराइज करना पड़ेगा कौन कौन क्वेश्चंस मेनली सिनोनिम एंटोनिम का वहां पर आते हैं. नेक्स्ट इज आपका सिलेबस में जो है होमोनिम या होमोफोन, ये भी है आपका सिलेबस में. नेक्स्ट हम लोग जो कवर करने वाले हैं फीलर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर. इसका सैंपल भी मैं मेरा वीडियो में, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा, नेक्स्ट पार्ट कंसेक्यूटिव पार्ट, वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फीलर्स. एंड नेक्स्ट वन इज डे टू डे यूसेज, आई मीन नंबर, ओके, जेंडर चेंज, collective nouns, and then habitation, food habit, name of the kids, calling, movement of animal, this kind of things. Okay, day to day usage, mainly gender change and number. Next is that current usage. अभी तो वायरल का ज़माना है, जो वर्ड वायरल हो जा रहा है. मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक क्वारंटाइन. ये टर्म पहले हम लोग यूज़ नहीं करते थे, बिफोर कोरोना के टाइम हम लोग ये टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे. सो नाउ इट हैज़ बिकम, यू नो, दैट्स वेरी नोन वर्ड इवन टू अ लेमैन. सो दैट्स वाई क्वारंटाइन, ये एक वर्ड हो गया. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्वारंटाइन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्प्रिजनमेंट? सो इम्प्रिजनमेंट एंड क्वारंटाइन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये सब नॉर्मली हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर. एंड दोज आर द, यू नो, द सिलेबस फॉर WBCS Prelim. सो वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया. जो लोग इस कोर्स में आओगे
दो मतलब जो लोग इस कोर्स में एनरोल करोगे सब स्टूडेंट को इसके ऊपर हैंड आउट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और क्लासेस तो है ही, प्रैक्टिस क्लास भी है, डिटेल डिस्कशन भी होगा। जिन लोगों ने इस कोर्स में नहीं आओगे उन लोगों के लिए भी देयर इज द गुड न्यूज़ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लाइक on a regular basis we are going to provide different kind of classes, practice classes on WBCS Preli. Okay, so please don't have tension, but if you want to make your preparation intense, if you want to heighten the standard of your preparation for WBCS Preli, you should enroll yourself in this course. It's a pocket friendly one. So these are the syllabus. Now come to the next part, that is I am going to show you that what can be the standard of our notes or the PDF you may say, and what can be the modus operandi, the what to say, that is the set through which we are going to take the preparation. So देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, आप लोग जूम करके देख सकते हो आपका मोबाइल में, जो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो वीडियो को थोड़ा जूम करके देखो। मैंने यहाँ पर एक सेट दिए हैं, दिस इज मेनली ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, दिस सेट इज मेनली ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग के हाथ में तो ज़्यादा टाइम है नहीं, नियर अबाउट 90 days. सो विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम व्हाट शुड बी आवर प्रोसेस, व्हाट शुड बी आवर वे, क्या हो सकता है, हम लोग को डिटेल में सीखना पड़ेगा। डिटेल मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सीखेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है इसमें मेनली आपको नॉलेज रहना चाहिए रिगार्डिंग द वर्ब। आई मीन व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बी वर्ब, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हैव वर्ब, what can be the present form of an action verb, what can be the plural form, singular form of a verb. This kind of knowledge are required over here. So what would be my process over here as a teacher? First of all, I will try to clarify all those things, that what are the be verbs, what are the auxiliary verb in detail. Okay, definitely we are going to take one video for that. उसमें detailed discussion रहेगा regarding the pattern of the verb. Then just you are going to have near about 13 to 15 rules on subject verb agreement. And my dear friends, please don't be overloaded with rules. Books में आप देखोगे बहुत सारे rules दिया हुआ है, but all of those are not needed for WBCS Preli. Banking के लिए आपका preparation अलग होना चाहिए, SSC के लिए आपका अप्रोच अलग होना चाहिए, WBCS Preli के लिए आपका अप्रोच अलग होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है, ये इसमें जो क्लास रहेगा हम लोग वही रूल कवर करेंगे जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा देखो, यहाँ पर देखो एक नाउन दिया हुआ है, मतलब आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है द कॉमेडी, और यहाँ पर देखो बोल रहा है हैव वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, लाइक यू हैव टू फिल दिस गैप विद द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ हैव वर्ब। सो व्हाट आर द योर ऑप्शंस, यहाँ पर देखो डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, तो आपको दिमाग में तब आ जाना चाहिए what can be the example of have verb or present tense, and over there we can have only two options like has and have. So with the term committee what will be the answer, has or have? अगर ये क्वेश्चन में अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है द कॉमिटी डैश अराइव्ड बाय डिफरेंट ट्रेन्स इन डिफरेंट टाइम्स। अगर WBCS Preli के लिए 6 लाख फॉर्म फिलअप होता है, आई कैन गारंटी यू दैट वहाँ पर 5,80,000 लोग विल गो विथ हैज, कॉमिटी हैज, बट माई डियर फ्रेंड्स they will not notice about this thing like different tense in different times, जहाँ पर डिफरेंट अप्रोच होता है मेंबर्स का बीच में यूनिटी नहीं रहता है। दे नॉर्मली फॉलो अ डिफरेंट अप्रोच व्हेन दे एक्सप्रेस देयर डिफरेंट ओपिनियन, एट दैट टाइम वर्ब बिकम्स प्लूरल विद अ कलेक्टिव नाउन एंड डेफिनेटली द आंसर विल बी हैव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलेक्टिव नाउन रिलेटेड रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके आगे हैव वर्ब का पैटर्न डिस्कस करेंगे, एंड तब हम लोग के लिए जो भी क्वेश्चन आए वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले हैंड आउट आएगा आप लोगों के पास रिगार्डिंग रूल्स, उसके बाद
आप लोगों को डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, आप लोगों के सामने रखा जाएगा, एंड देन विल गो फॉर वर्कशीट। ऐसे करके हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे। और पहले तो हम लोग विदाउट ऑप्शन सीखेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी लेवल को थोड़ा एनहांस करने के लिए पहले विदाउट ऑप्शन सीखेंगे। उसके बाद जब प्रैक्टिस क्लास आएगा तब विथ ऑप्शंस आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा। सो ऐसे करके हम लोग थोड़ा प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट कम टू वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड यू मे से फॉर WBCS प्रीली, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एक यू मे से दैट अ हॉट केक, यू मे से ये चैप्टर लाइक प्रिपोजिशन बहुत एक फेवरेट चैप्टर होता है पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये मतलब PSC में, स्पेशली फॉर द प्रीली और दिस काइंड ऑफ थिंग। आप अगर पुलिस का एग्जाम दोगे, पुलिस का कांस्टेबल का जब मेन होता है, कांस्टेबल का मेन, वहाँ पर जब इंग्लिश रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन ये प्रिपोजिशन से दिया जाता है। तो आप लोग बेकार टाइम वेस्ट मत करना कि आप ऐसे करके सीख रहे हो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑन, आपन एंड अबव। ऑन, आपन और अबव तीनों का मीनिंग ही होता है ऊपर, लेकिन आप एक ग्रामर बुक ले रहे हो या एक PDF खोल रहे हो या कोई एक वीडियो से आप पहले सीख रहे हो व्हाट इज़ ऑन, व्हाट इज़ अपन, व्हाट इज़ अबव। भाई इतना टाइम है नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, आपको पूछा नहीं जाएगा कि ऑन और अपन का बीच में डिफरेंस क्या है। रेदर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन दिया रहेगा कि व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन प्रे ऑन एंड प्रे अपॉन। देन आपको समझना चाहिए कि वहाँ पर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो जो पॉपुलर वर्ड्स वर्ब हैं उसका एक लिस्ट हम लोग पहले से रख लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने रखा है कि कॉन्सिस्ट। कॉन्सिस्ट नॉर्मली क्या होता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ होता है, लेकिन ये कॉन्सिस्ट ऑफ वाला क्वेश्चन आपको नहीं दिया रहेगा। कॉन्सिस्ट के साथ इन भी होता है, तो कंसिस्ट के साथ कौन सा जगह में इन होगा उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन होगा। व्हेन यू आर बायस्ड टू समवन एल्स, आप किसी को मतलब ज़्यादा प्यार करते हो, आप किसी को दोष मतलब उसका डिमेरिट्स, उसका नेगेटिव साइड्स आप नज़र नहीं करते हो, दैट मीन्स यू आर ब्लाइंड डैश टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो तब क्या होगा, और जब नॉर्मली आपका पुअर आई साइट रहता है तब आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे विद ब्लाइंड। ये क्वेश्चन लेम के साथ भी दे सकते हैं आपको। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ वर्ब मेनली accompany के साथ कौन सा प्रीपोजिशन होगा। एंड द स्टम्बलिंग ब्लॉक, यू मे से द ग्रेट बैरियर, you know, the obstacle before us for this kind of thing is the spoken English. Spoken English में हम लोग normally grammar follow नहीं करते हैं, तो उसका reflection हम लोग का written English में आ जाता है। That's why हम लोग क्या बोलते हैं, he is cleverer than me, but he is cleverer than I. It's not he is cleverer than me. So this kind of thing, accompany के साथ preposition होता है। Most of the students accompany with, but in there are difference कि accompany with कहाँ पर होगा, accompany by कहाँ पर होगा, what are the context जहाँ पर accompany के साथ ना तो होता है with, ना होता है by, कौन सा context है जहाँ पर accompany के साथ नहीं होगा। तो ये डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। इस मतलब हम लोग का जो वीडियो रहेगा ऑन प्रीपोजिशन, जो क्लासेस रहेगा, और हम लोग का प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब सेशन में भी ऐसे करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों का भी, जो लोग द्रोणास का वीडियो नहीं देखते हो, द्रोणास का वीडियो को मतलब फॉलो नहीं करते हो, द्रोणास का टीचर्स को फॉलो नहीं करते हो, जस्ट एक बार आप लोग घूमने के लिए आए हो यहाँ पर, उन लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे करके भी आप लोगों का भी एक प्रोसेस या सिस्टम होना चाहिए प्रिपरेशन लेने का। ओवरऑल एक प्रिपरेशन लेके जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट में जो 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ 30 डेज में प्रीली पास करो बोल के जो बुक्स आता है, नॉट ऑफ एनी यूज़, कोई कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। सो दैट्स वाई पहले बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास में आना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा प्रीपोजिशन के बारे में या कोई भी चैप्टर हो, टेंस वगैरह, ऐसे करके हम लोग प्रिपेयर करेंगे। चलो मैं आप लोगों को और भी एक मैं सैंपल दिखा रहा हूँ द्रोणास का,
कि कैसे हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपेयर करेंगे। देखो मैंने आप लोगों के सामने एक हैंडआउट मतलब एक क्वेश्चन पेपर रखे हैं आप लोगों के सामने, ये पीली बेस्ड है और आप लोग शायद देख पा रहे हो कि इस सेट में मैंने टोटल 25 क्वेश्चन रखे हैं। देखो यहाँ पर 16 क्वेश्चन, इस स्लाइड में 16 क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड में आपका आ रहा है टोटल बाकी क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। टोटल 25 क्वेश्चन का ऐसे करके सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, आप लोग जूम करके देखो, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डे टू डे यूसेज जैसे कलेक्टिव नाउन, होमोफोन, एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन गिवन ओवर देयर। जैसे ये एक क्वेश्चन शायद आप लोग देख पा रहे हो, देखो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं। देखो यहां पर बोल रहा है वेंट्रीपोटेंट कैन बी सिनोनिमस टू, वेंट्रीपोटेंट कैन बी सिनोनिमस टू। और यहां पर और देखो और एक क्वेश्चन आ रहा है, कहां गया, जस्ट अ मिनट। देखो बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ आवर ट्रिप टू गैंगटॉक तेंजिंग प्रूव टू बी एन एक्सलेंट ब्रिक, द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स। ऐसे करके आपको सिनोनिम पूछा जाएगा। यहां पर ब्रिक का मतलब क्या है, गाइड, कैब ड्राइवर, कॉम्पेनियन, कैमरामैन। आप जब घूमने के लिए जाते हो आपको ये चारों पर्सन्स का हेल्प लेना पड़ता है। आप गाइड का हेल्प लेते हो, आप कैब ड्राइवर का, टैक्सी ड्राइवर का हेल्प लेते हो, आप कंपेनियन को हेल्प लेते हो, आपके साथ कोई जाता है घूमने के लिए, आप कैमरामैन का हेल्प लेते हो। तो यहाँ पर ब्रिक का मतलब क्या है, गैंगटॉक आप जा रहे हो, उसके टाइम तेंजिंग आपका साथ जा रहा है, तो तेंजिंग का रोल यहाँ पर क्या था, मतलब ब्रिक का मीनिंग क्या है, ऐसे करके। A large dark grey cloud that brings rain or snow is called, ऐसे करके वन वर्ड का भी क्वेश्चन रहेगा। सो देखो क्वाफ का मीनिंग, रेज्यूमे का मीनिंग, रेज्यूमे का मीनिंग क्या है आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। रेज्यूमे, ये देखो रेज्यूमे स्टैंड्स फॉर, पीएससी का क्वेश्चन, रेज्यूमे स्टैंड्स फॉर, वही जो मैंने बोला ना आप लोगों को 5,80,000 लोग रेज्यूमे का मीनिंग आपको यहाँ पर मार्क करेगा बायोडाटा, बट रेज्यूमे का मतलब बायोडाटा नहीं होता है। रेज्यूमे का मतलब होता है आपका अचीवमेंट, व्हाट यू हैव अचीव्ड। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, जो पीएससी का पैटर्न होता है, और आउट ऑफ दैट कंफ्यूजन हम लोग मार्क कर लेते हैं गलत आंसर पे, वो भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा पहले हम लोग सीखेंगे अच्छा से, उसके बाद ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हो जूम करके देखो, ये सेट भी मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा। आज तो सिर्फ मैं सैंपल दिखा रहा हूं। और एक चीज मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा न्यूज़पेपर एवरीडे बेसिस में देखो, पढ़ो, नॉट द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर। टेलीग्राफ इज नॉट गोइंग टू बी helpful for our competitive exams, rather we can go through the paper like the Hindu or the Times of India, even the Statesman। क्योंकि मतलब ये सब न्यूज़पेपर का एक्चुअली सर्कुलेशन गांव में नहीं होता है। तो जो स्टूडेंट्स गांव में बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, फॉर दोज स्टेट्समैन कैन बी अवेलेबल इन योर नियरर प्लेसेस, सो प्लीज गो ओवर देयर, ट्राई टू परचेज अ न्यूज़पेपर ओनली इन अ वीक, ओके, वंस इन अ वीक। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एवरी डे यू हैव टू बाई इट, नो नॉट दैट। आप डिजिटल मतलब ऐप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन ऐप डाउनलोड करके पढ़ने में एक रिस्क ये होता है कि वहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। आप जब आपका नेट ऑन करोगे आपका फ़ोन में, तो साइमल्टेनियसली बाकी जो ऐप हैं साइमल्टेनियसली एक्टिव हो जाता है, तो जब नोटिफिकेशन आते रहेगा आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। तो दैट्स वाई बेटर टू गो थ्रू इन प्रिंट फॉर्म। सेकेंडली, आपके पास कोई अच्छा खासा ग्रामर बुक है, लाइक रेन एंड मार्टिन का कोई बुक आपके पास, एस चंद पब्लिकेशन का जो होता है रेन एंड मार्टिन, दैट्स जस्ट लाइक अ बाइबल फॉर WBCS प्रीली, वो बुक भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप द्रोणास का जितने सारे यूट्यूब क्लासेस हैं, यूट्यूब क्लास को फॉलो करो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपके सामने गाइड आ जाएगा। एंड इस प्लेटफॉर्म में जो टीचर नॉर्मली क्लास लेते हैं सब कोई 12 इयर्स का एक्सपीरियंस सबके पास है। सो दैट्स वाई ये कोई फेक चैनल नहीं है, ये कोई दिखावा यहाँ पर है नहीं। सो दैट्स वाई यू कैन डिपेंड ऑन अस। एंड वन मोर थिंग टू से कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एवरीडे बेसिस में। जो लोग पुलिस के लिए टारगेट कर रहे हो अलॉन्ग विद WBCS, उन लोगों के लिए भी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लॉन्च ओवर हियर। सो दैट्स वाई प्लीज डोंट वरी फॉर दैट।
तो जो लोग एनरोल करोगे, कैसे हम लोग ये क्लास लेंगे, कैसे मतलब हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन लेंगे, what should be the way of our understanding, what should be the way of our preparation, our notes making, deliverance, everything else ऑलरेडी मैंने ट्राई किया है आप लोगों के सामने रखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, इसलिए चैनल को थोड़ा आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप अगर ड्रैग करके भी ये वीडियो देख रहे हो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करके रखो, डेफिनेटली हेल्पफुल आपको होगा ही होगा ये चैनल, ये हम लोग की तरफ से प्रॉमिस है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके साथ आलोक सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट डे हम लोग फिर और एक चैप्टर लेकर यहाँ पर आएंगे, एक प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके हम लोग के साथ एसोसिएटेड रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद।